Hello dear students, welcome to the class today. So children, you know we are carrying on with the second chapter, history, nationalism in India. Last class where we had stopped, actually we were discussing about civil disobedience movement. One of the biggest movements that had changed the course of history, that had changed the thought process, the ideas in which the people used to think about India. गांधी जी को वीक समझने की जो गलती कर रहे थे, especially the Britishers who were trying to underestimate the power of Mahatma Gandhi, this movement was an answer to that. This movement had made it very clear that power of Mahatma Gandhi was no less. बहुत ज्यादा पावर था उनके अंदर में. And he has made the Britishers understand कि Indians को हल्के में ना लें. They must not consider Indians or take Indians very lightly. Indians were capable of doing anything and going to any extent. Got it? That was the power of the Indians. Actually, that was the power of the Indians. Got it? तो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द वे इट हैज स्टार्टेड, इट हैड अ डीप इम्पैक्ट in the Indian national movement as well as in the Indian political system. And last class में what we have discussed about the difference between CDM and NCM. अभी children, I have written here क्योंकि I am just reminding you about it. आई एम जस्ट रिवाइजिंग अबाउट इट, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. आप प्लीज अपने मेन आंसर बुक में डोंट राइट सीडीएम एंड एनसीएम. दिस हैपेंड लास्ट ईयर कि मैम आप ही ने तो लिखा था, मैम आप ही ने तो बताया था. नो बेटा, मैं आई एम जस्ट सेविंग माई टाइम so that I can invest my time in explaining other concepts which we have already discussed about. Civil disobedience movement quite different नहीं था, काफी चीजें सिमिलर भी थी. But then it had a major thing in this civil disobedience was marked by the breaking of salt law. नमक कानून जो तोड़ा गया ना, civil breaking of salt law was a big thing. Breaking of salt law was a landmark in history. That is there. Okay. एंड सॉल्ट का क्या प्रॉब्लम थी, सॉल्ट लॉ, मोनोपोली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. आई एम नॉट रिवाइजिंग इट. अब क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कैरिंग ऑन विथ फुल फोर्स. बड़ी तेजी से ये मूवमेंट चल रहा था. एंड बिलीव मी, ब्रिटिशर्स वेर इनटू रियल ट्रबल. काफी परेशान हो गए थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन. ये सारी सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करें, एकदम खिजला जा रहे थे, झुंझला जा रहे थे, परेशान हो रहे थे. सो द ब्रिटिशर्स उन्होंने क्या किया ना, फैनेटिकली दे स्टार्टेड अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन. उनको यही सबसे पहले समझ में आया. They started arresting Congress leaders एक एक करके. People were very angry. ये क्या तरीका है, without any reason arresting the leaders. The Indians were not happy. एंड यही दिस इंसिडेंट हैपेंड. अब पेशावर में क्या हुआ, इन पेशावर, अभी तो इट इज इन प्रेजेंट पाकिस्तान, लेकिन उस समय तो पाकिस्तान नहीं था ना, इट वॉज इंडिया एट दैट टाइम. सो इन पेशावर खान अब्दुल गफ्फार खान
Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, I'm sorry, M.K. गांधी लिख देती हूँ, ठीक है? M.K. गांधी was arrested. इनको क्या किया ना, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. He, इनके बारे में थोड़ा सा जानो. Please try to understand something about this great man. He was a person who blindly followed Mahatma Gandhi. And गांधी जी के मैसेज को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मीन्स प्रेजेंट पाकिस्तान, आज जो है वो उस समय at that time before independence it was called as NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बहुत ज्यादा इनको इज्जत मिलती थी because of his non-violent methods, because of his peaceful methods, and because of his carrying on the message of Mahatma Gandhi in a very peaceful manner. Carrying on the movement, ये movement को बहुत ही आराम आराम से अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे. तो क्या हुआ कि he was arrested in April 1930. इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था. He was also called as Frontier Gandhi. Yes, so much he was resembling nahi, actually the way he propagated the ideas of Mahatma Gandhi. सबसे बड़े इनके फॉलोअर इनको माना जाता था उस एरिया में, इसके लिए इनको गांधी जी का डुप्लीकेट मान के फ्रंटियर गांधी कहा जाता था. So when he was arrested, angry crowds came on roads, पूरा आ गए सामने में, and faced armored cars, okay, and police firing. ब्रिटिशर्स के पास ऐसी कार्स थी ना जो पूरा हथियारों से लैस होती थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे, देयर आर सो मेनी राइफल्स एंड बॉम्ब्स एंड ऑल दैट. तो उनको डर नहीं लगा. दे वेर सो मच इन सपोर्ट ऑफ फ्रंटियर गांधी दैट दे स्टूड इन फ्रंट ऑफ द कार एंड दे सेड कि आइए मारिए, प्लीज किल अस, बट वी विल नॉट गो बैक, हम पीछे नहीं हटेंगे. हमारे लीडर को आपने क्यों अरेस्ट किया? Why did you arrest our leaders? Police firing was there. Some people were killed also, and Gandhi ji was feeling very sad about them. कर नहीं पा रहे थे कुछ. But look at the force of the Indians. पूरा क्या कर रहे थे ना कि they were the Indians have posed a real challenge in front of the Britishers. अभी ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा था कि इंडियंस को तो अब रोकना बड़ा मुश्किल है. इंडियंस रुकने के लिए तैयार नहीं थे और इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को बता दिया था कि वो क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं. तो इट वॉज अ टफ टाइम फॉर द ब्रिटिश. यही हुआ. इसके बाद पहले तो फ्रंटियर गांधी को उन्होंने अरेस्ट किया एंड एक महीने के बाद, a month later, Mahatma Gandhi was arrested. He was also arrested. और लोग गुस्सा आ गए. ठीक है, पहले तो फ्रंटियर गांधी को अरेस्ट किया एंड अभी महात्मा गांधी को अरेस्ट किया. तो क्या हुआ? इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट. इंडस्ट्रियल वर्कर्स in Sholapur is in Maharashtra, attacked police posts. पुलिस तो ब्रिटिश की है ना, it is not Indian. So they were attacking all the British offices and British institutions.
ब्रिटिशर्स का नुकसान करना है तो पुलिस पोस्ट को अटैक किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, अदालत एंड रेलवे स्टेशंस। ये यहां पे अगर आप आक्रमण करते हैं तो दिस इज द नुकसान ऑफ द ब्रिटिश प्रॉपर्टी। ब्रिटिशर्स का नुकसान हो रहा है, ये इंडियंस का नुकसान नहीं है। Those have been made by the Britishers. So all structures that symbolized British rule and other structures जहां जहां भी उनको समझ में आ रहा था that symbolized British rule. ये उस समय की बात है जबकि सिविल डिसोबीडियंस वाज गेनिंग मोमेंटम, काफी स्पीड बढ़ गई थी। अब गवर्नमेंट वाज वेरी, ये इतना जब यहाँ पे सो मच ऑफ वायलेंस वाज देयर, ये किसी को मार नहीं रहे थे, खाली ब्रिटिश का नुकसान कर रहे थे। डिसोबीडियंस है, ब्रेकिंग द लॉ है, सो दे वेर रिएक्टिंग, द इंडियंस वेर रिएक्टिंग इन दिस मैनर। ब्रिटिशर्स एक्चुअली वेर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि हालात को कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल ऑल द सिचुएशन। दे वेर इन एन ऑस्ट्रक, ठीक है, हतप्रभ रह गए थे, स्तब्ध रह गए थे एंड शॉक में थे कि ये सारी सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। सो अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट responded with repression. अब इन्होंने कहा कि अच्छा बहुत मन बढ़ रहा है ना, आओ ब्रूटल रिप्रेशन। सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड, विमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बीटन एंड 1 लाख पीपल वेयर अरेस्टेड। ठीक है, सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड, सत्याग्रही जो एकदम नॉन वायलेंट थे, एंड विमेन, बच्चों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। In fact, the children were also getting very enthusiastic to participate in these movements. वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। So, अब सोचो, women and children were beaten. आपको क्या लगता है, इन्होंने वापस कुछ किया होगा? No, my dear children. सत्याग्रही हैं, नॉन वायलेंस है, मार खा रहे हैं, वापस नहीं मार रहे। Even the women and the children also. Got it? And about 1 lakh people were arrested. And about 100,000 people were arrested. इतने सारे लोग अरेस्ट हो गए। आप सोचो, बिलीव मी चिल्ड्रन, एक्चुअली ब्रिटिशर्स का जेल में जगह नहीं थी लोगों को भरने के लिए। दे हैव टू मेक सेपरेट कैंप्स विच वर सर्विंग द पर्पज ऑफ जेल। ठूस ठूस के लोगों को भर रहे हैं वहां पे। एंड इट वॉज लाइक अ सेरेमनी फॉर द इंडियंस कि अच्छा अरेस्ट होने के लिए जाना है, चलो चलो हम भी अरेस्ट देते हैं, हम भी अभी अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। इट वॉज लाइक अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर द इंडियंस। लाइन लगी हुई थी पुलिस स्टेशन के बाहर। बिलीव मी चिल्ड्रन, दैट वॉज द सीन, दैट वॉज द सिनेरियो। इट्स वेरी फनी बट देन दैट वॉज द रियलिटी कि लोग लाइन लगा के खड़े थे कि अरे आपने अरेस्ट करना है, आपको लोग कम पड़ रहे हैं, आइए आइए हमको भी अरेस्ट कीजिए, प्लीज कम एंड अरेस्ट। तो 1 लाख पीपल वेर अरेस्टेड, 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। नाउ महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। महात्मा गांधी decided to call off the movement.
जब पीक पे होते थे, बिल्कुल मूवमेंट टॉप पे पहुंच जाता था, सडनली महात्मा गांधी क्या करते थे ना, मूवमेंट को पीछे हटा लेते थे. दिस वॉज अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम फॉर द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग. जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक वो था. एंड गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड. नहीं, इसके पीछे कारण है, प्लीज अंडरस्टैंड. यहाँ पे इस समय कोई चौरी चौरा टाइप का घटना नहीं हुई थी. इट वॉज नथिंग लाइक दैट. ये याद रखिएगा. ऑन 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट में क्या था, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. क्योंकि अब देखो यहां पे ब्रिटिशर्स की चालाकी को समझो, ब्रिटिशर्स के चाल को समझो. अब उन्होंने एक नया दाव खेला था. नया दाव क्या था, दे वर ट्रबल्ड ना, उनका सारा कामकाज ठप हो गया था. इंडियंस हैव पोज्ड अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो उनको लग रहा था कि इसको कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए. एंड वाइसरॉय वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन इन ब्रिटेन. ब्रिटेन से एक क्वीन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आते थे. उनको यहाँ पे ही हैज टू कंट्रोल ऑल द इंडियन सिचुएशंस एंड लुक इनटू द इंडियन मैटर्स. तो उनको कहा जाता था, ही वॉज कॉल्ड एज द वाइसरॉय. वाइसरॉय वॉज इनटू रियल ट्रबल. उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है. तो उन्होंने कहा भैया बात तो करो, एटलीस्ट टॉक टू अस. सो महात्मा गांधी सेड, अच्छा टॉक टू अस. हम जब बात करने के लिए आ रहे थे, व्हेन वी हैव सेंड आवर 11 डिमांड्स, रिमेंबर दोस 11 डिमांड्स, यस, आपने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया. नाउ यू वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम अस. तो महात्मा गांधी एंजॉयड द सिचुएशन, बट गांधी सेड, इरविन सेड, प्लीज एटलीस्ट गिव अस अ चांस टू नेगोशिएट. नेगोशिएट मतलब बातचीत करके कुछ सोल्यूशन निकालते हैं. एंड ही सेड कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कीजिए. प्लीज गो एंड पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट वाज टू बी हेल्ड इन लंदन. अब इसलिए गांधी जी ने कहा कि आपकी शर्तें, आपने अभी तक अपनी शर्तें रखी, अब इट इज द टाइम कि आप हमारी शर्तों को मानिए. एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशंस नाउ. इंडियंस का पड़ला बहुत भारी था. गॉट इट. सो इंडियंस वेर नाउ इन अ वेरी गुड पोजिशन. तो अब आप इंडियंस की बात मानिए. सो गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. लेकिन शर्त क्या थी, कांग्रेस ने पहला क्या कि इन लंदन, एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. एंड द गवर्नमेंट agreed to release the political prisoners. अब आप पूछोगे ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल प्रिजनर्स 1 लाख लोग जो अरेस्ट हुए थे, सत्याग्रही, those who have participated in the civil disobedience movement, ये वो लोग थे. Got it? They were the satyagrahis who had participated in the civil disobedience peacefully. No violence. ठीक है. अब यहां पे एक कहानी है जो I would definitely like to share it with you. This was the time when भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. यस, भगत सिंह को मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई भी बच्चा ऐसा है जो नहीं जानता हो. एवरीबडी नोज भगत सिंह. ही वॉज इन द जेल एंड मेनी लीडर्स केम एंड टोल्ड महात्मा गांधी. उनको फांसी की सजा हो चुकी थी. तो मेनी लीडर्स केम एंड टोल्ड महात्मा गांधी कि उनको भी छुड़वा दीजिए. दे आर यंग लीडर्स, काफी पॉपुलर हैं और इंडिया के लिए ही तो फाइट कर रहे हैं.
उनका हो सकता है तरीका अलग हो, लेकिन मृत्यु दंड उनको मिली है, उनको बचा लीजिए. गांधी जी डिड नॉट अग्री. No, we can't say Gandhiji is wrong here. Because Gandhiji's principle is non-violence. And they were the ones who have accustomed to violence. उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था, बॉम्ब ड्रॉप किया था असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में. तो ये उनका कहना था ना कि बहरों को सुनाना है तो धमाका करना पड़ता है. तो उन्होंने जो धमाका किया था उसकी वजह से ब्रिटिशर्स हैव अरेस्टेड देम एंड गिवन देम डेथ सेंटेंस. सो महात्मा गांधी इज क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस कि उनके हाथ में पूरा पावर था. वो चाहते तो इनको रिलीज करवा सकते थे, बट देन गांधी जी डिड नॉट अग्री टू इट एंड ही सेड कि नॉन वायलेंस इज द प्रिंसिपल. ओनली द पीपल हु हैव accustomed to non-violence, only those people would be released from the jail. 1 lakh people who were there in the jail, they were released. And December 1931 में गांधी जी went London for December 1931. गांधी जी went London to attend second round table conference. कॉन्फ्रेंस था ना, ब्रिटिशर्स, श्रूड पीपल, स्मार्ट पीपल. उन्होंने क्या किया था वहां पे, मोहम्मद अली जिन्ना, अदर पार्टीज. बाय दैट टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज खाली कांग्रेस वाज नॉट द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. There was Muslim League, there was Backward Classes League. Backward Classes League was being led by B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar. तो उनको भी वहां पे बुलाया था. So they started playing the game of divide and rule. We will be giving you reserved seats in the legislative assembly and we will be giving you advantages. Come and join our group. किसको फायदा पसंद नहीं है? अगर किसी को फायदा हो रहा है वो क्यों नहीं लेना चाहेगा? Why will the person refuse if some extra advantage is being given to that person? So B.R. Ambedkar was very happy and he was angry with Mahatma Gandhi. He said मुझे अगर कुछ फायदा, and Mahatma Gandhi was very annoyed. He said आप क्या गेम खेल रहे हैं? आपने हमको यहाँ बुलाया है सिविल डिसोबीडियंस की बात करने के लिए. And what is the game? They said कि no, civil disobedience is over now. Now we are here. We want to discuss. Please accept our terms and conditions. हम आपकी बातों को मानने के मूड में नहीं है. Mahatma Gandhi was very annoyed. He came back. The negotiations broke down and he returned disappointed. कोई बातचीत का हल नहीं निकला. महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट को शुरू किया था उस मूवमेंट को वो चला नहीं पाए. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले गए एंड दिस वाज अ विनिंग फैक्टर टू द ब्रिटिशर्स. बंद तो करवा दिया ना. यस, इट वाज लाइक अ टीजिंग फैक्टर फॉर द इंडियंस. चढ़ाने वाली बात थी. महात्मा गांधी को वहां पे हटा दिया बीच में से, नॉन कोऑपरेशन भी खत्म कर दिया. सो एम के गांधी केम बैक डिसअपॉइंटेड. बहुत ही उनको बुरा लगा कि इतनी तेजी से जो मूवमेंट चल रहा था वो मूवमेंट सडनली एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गया एंड उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला. जब वापस आए ना. So students, we were talking about this conference, and this round table conference has made sorry Gandhi ji very disappointed, and government began a new cycle of repression. Ghaffar Khan, Jawaharlal Nehru, all these people were in jail. Congress was declared illegal and there were series of measures imposed to prevent meetings. This was a very disappointing factor for Mahatma Gandhi. Further, we'll be discussing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.